پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اب ہم بڑھیں گے ہمارا جو اس ٹرانسمیشن کا ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ نیکی سیگمنٹ ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ نیکی سیگمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہم سپیریئر ہیرو سیگمنٹ کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو آج کی خاتون جن سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، یہ بھی ایک ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ خود کفیل ہونا چاہتا ہے یا جو اپنے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور محنت کرتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہیرو ہے، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کے لیے وہ ہیرو ہے۔ مسز بخاری سے ہم آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، جنہوں نے اپنے میاں کے ساتھ سوچا کہ وہ ایک انیشیٹو لیں گی، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، بلکہ ایک چھوٹا سا ڈھابا، ایک چھوٹا سا وہ ریسٹورنٹ بنائیں گے، محنت مزدوری کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے قرضہ بھی اٹھایا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 جب آیا تو اس نے کتنے لوگوں کے کاروبار اور روزگار متاثر کیے۔ مسز بخاری کے متعلق ہم ایک چھوٹا سا پیکج بھی آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے ان کی سٹوری جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں مسز بخاری، میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بنا کے چل رہی ہوں۔ گھر کے تیار کردہ کھانے لگاتی ہوں، یہاں پہ بریانی بنا کے لاتی ہوں، روز کی مختلف سبزیاں ہوتی ہیں، دال مختلف ہوتی ہے، گھر کی تیار کردہ روٹیاں ہوتی ہیں، سیلڈ، رائتا۔ میں اس مارکیٹ میں گھر کے تیار کردہ کھانے لے کے آئی ہوں تاکہ کچھ ہمارا گھر کا ذریعہ معاش چل سکے اور بہتری کی طرف ہم لوگ جائیں۔ ایکچولی ہم نے کرونا سے پہلے چند ماہ پہلے ہی ہم نے ریسٹورنٹ کھولا تھا، ماشاءاللہ جس کی ارننگ بیسٹ ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی کرونا کا لاک ڈاؤن اور اس طرح کا جو پروسیجر چلا تو بالکل ہی ہم لوگ جہاں سے کھڑے تھے وہیں پہ واپس آ گئے۔ جی، یہ پیکج آپ نے دیکھا، سٹوری آپ نے دیکھی، ان کی ملاقات ہم آپ سے کرواتے ہیں۔ مسز بخاری، کیا سوچا تھا آپ نے کووڈ کے آنے سے پہلے کہ کس طرح سے آپ محنت مزدوری کریں گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گی اور اپنا کاروبار شروع کریں گی؟ جی، ہم لوگوں نے یہی کیا پلان کہ لون لے کے ہم لوگ ریسٹورنٹ کھولتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے میرا بیٹا اور میرے ہسبینڈ اور میں خود، ہم تینوں مل کے کام کریں گے، محنت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہمارا پہلے مقام تھا، ایک گھر تھا ہمارا، بوتیک تھی، سارا سیٹ اپ تھا اچھا سا، وہ سب کچھ ہم لوگ لوس کر چکے تھے۔ اب تھا کہ اب دوبارہ سے اسی اپنے ٹائم پہ آئیں، محنت کر کے واپس اپنے مقام پہ آئیں، لیکن بدقسمتی سے کرونا آ گیا، اس وجہ سے۔ کتنا قرض لیا آپ نے یہ سارا اپنا جو کاروبار ہے، چھوٹا سا سیٹ اپ لگانے کے لیے آپ نے کتنا قرض لیا آپ نے؟ ہم نے جو ریسٹورنٹ کھولا تھا اس کا ہم نے اور وہ نیسیسری جتنی چیزیں تھی ساری ضرورت کی وہ ہم نے لگائیں کی، وہ کوئی 8۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ کیا سوچتی تھیں آپ؟ کون سے اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھیں؟ یا کیا خیال کرتی تھی کہ بچوں کی تعلیم پہ جو پیسے کمائیں گی اس کو صرف کریں گی؟ کیا سوچ کے آپ نے کاروبار کا آغاز کرنا چاہا؟ ایکچولی سٹارٹ میں نے کیا تھا، میرے ہسبینڈ کو ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا، دل کے مریض۔ ان کو جب پہلی دفعہ ہوا تب وہ باہر تھے، پاکستان آ گئے، پھر یہاں آ کے کوئی جاب نہیں ملی، پھر جب دوبارہ سے ان کو اسٹنٹ ڈلوائے تو فرسٹ ٹائم تو سب نے ساتھ دیا، سیکنڈ ٹائم کسی نے ساتھ نہیں دیا، مجھے خود کرنا تھا سارا کچھ، جو بھی کرنا تھا۔ میرے پاس زیور تھا، وہ میں نے سیل آؤٹ کر کے میں نے نہ صرف اپنے ہسبینڈ کا علاج کروایا بلکہ میں نے بوتیک بھی، اس وقت کوئی تو ہوگا، کوئی نہیں، کوئی بہن بھائی کوئی تو آیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا جب برا وقت آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ ٹائم میرے پہ وہ اس طرح کا آیا۔ سب کچھ آپ نے اپنا سارا زیور، سب کچھ جمع پونجی آپ نے سیل کر دیا؟ سیل کر دیا، پھر میں نے بوتیک بنائی، پھر اس کے بعد پھر ہسبینڈ کی اور زیادہ کنڈیشن خراب ہو گئی، کچھ گھر کے معاملات کچھ زیادہ خراب بگڑتے چلے گئے، بچے اسکول جانے والے، سارا کچھ معاملہ، بچوں کی فیسز ٹائم پہ جاتی رہی، وہ بس وہی مسئلے خراب ہوتے چلے گئے۔ پھر ہم لوگ بالکل ایسے ہو گئے کہ ہم لوگ رینٹ کے گھر پہ آ گئے، پھر رینٹ بھی نہ دے سکے ہم لوگ، ایسی سچویشن ہماری ہو گئی۔ اب کتنا آپ پر قرضہ، ابھی کتنے روپیوں کی آپ مقروض ہو چکی ہیں؟ میں 8 لاکھ روپے جو ہیں یہ آپ نے لوٹانے ہیں واپس؟
वो भी 5 कितने लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, कितने लोगों की आपको सुन पा रहे हैं आपको इस वक्त, उनको आप क्या कहना चाहेंगी, क्या कहेंगी उनको? मिसेस बुखारी, मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी के इस मौके पे इंसान कई दफ़ा हौसला अपना उसका ख़त्म हो जाता है, वो हिम्मत हार जाता है। जब आपकी औलाद होती है, ख़ासकर जब आपने अपनी औलाद का पेट भरना होता है, तो शायद वो एक बहुत मुश्किल घड़ी होती है जिसका अंदाज़ा हम नहीं कर सकते हैं। देखिए मिसेस बुखारी, तो आपसे कुछ कहना चाहें या ना कहना चाहें, मोहताज के लिए अपने ज़बान पे ये लफ्ज़ लाना कि मैं यूँ मोहताज हो गया हूँ या हो गई हूँ, दुनिया का सबसे मुश्किल और बेइंतहा दर्दनाक काम है। मगर आप सब अहले दिल, अहले दर्द हैं। आपके ख़याल में मिसेस बुखारी, जिन्होंने अपने ऊपर इन्हिसार करके अपने लिए एक रोज़गार का वसीला बनाया, और इस मुहलक वबा ने जहाँ इंसानी ज़िंदगियों को यूँ सेहत के मैदान में तबाह किया, वहीं मईशत के ऊपर बहुत बड़ी ज़रब लगाई। क्या चाहती हैं या क्या चाह सकती हैं? यही चाह सकती हैं कि हम में से कुछ लोग आगे बढ़ के सिला रहमी को इख्तियार करते हुए इनकी मदद को आएँ, इनके ऊपर जो कर्ज है उसकी अदायगी के लिए इनकी मदद करें, इन्हें दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होने में इनके कफील बने, इनके हामी और नासिर बने। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ये क्या चाहेंगी, और रकम ऐसी ज़्यादा नहीं है। नबिया, मेरा सिर्फ ये ख्याल है, अभी कुछ देर पहले हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान थे जनाब अमजद साकिब साहब, मैं उन तक भी इनकी बात पहुंचाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं जो कि इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं, और मुझे यकीन है कि अगर आप वो अकाउंट नंबर देखें जो कि मिसेस बुखारी का है और हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, अपना नाम जाहिर करना चाहें या ना करना चाहें, फ़ोन इन करके कुछ प्लेस करना चाहें या ना करना चाहें, हमें किसी की मजबूरी का तमाशा नहीं। सर कॉल आ गई है जी, अस्सलाम वालेकुम। यकीन था। वालेकुम सलाम। बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? अगर हमारे कॉलर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो यकीनन थोड़ी देर के बाद उनकी आवाज़ इस महफिल में शामिल हो जाएगी। आप में से भी जो हजरात इस वक्त चाहते हैं कि मिसेस बुखारी के आंसू पूंछें और उन्हें एक नई जिंदगी की उम्मीद दें, अपना नाम बताइएगा, कौन मौजूद है? कॉल ड्रॉप हमारी होगी। अच्छा, मैं कल न्यूज़ देख रही थी और मुझे किसी ने बताया कि भाई कितना ज़माना ख़राब हो गया है और देखो चोरी चकारी और लोग कितने मतलब जराइम में बढ़ गए। डॉक्टर साहब, हम भी कितने आराम से बैठे, कितनी तनकीद कर देते हैं कि फलाने शख्स ने ये जुर्म किया, लेकिन ये कितनी दुख की बात है कि जब आपके घर में आपका बूढ़ा माँ बाप बिस्तर पे पड़ा हो या आपकी औलाद का पेट भरने के लिए किसी के पास कुछ ना हो और कोविड के दिन हो और आपको कोई नौकरी भी ना दे रहा हो, तो शायद इंसान फिर कुछ भी कर गुजरता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके कुछ भी करें, लूटमार करें, लेकिन जरा उस कैफियत को डॉक्टर साहब समझें। भूख ऐसी चीज़ है जो इंसान को सब कुछ भुला देती है, और अपने बच्चों का भूखा चेहरा देखना, उस वक्त वाकई मरने मारने पे आप तैयार हो जाते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, बहुत से हमारे ऐसे सूबाई हुक्मरान जो कहते हैं मुकम्मल लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन, अरे उनसे पूछिए, उन खबीसों ने तो अरबों लोगों का खून चूस के अपने खजाने भरे हुए मुल्क से बाहर इस मुल्क के ऊपर अगर मुकम्मल लॉकडाउन कर जाएं तो मिसेस बुखारी की तरह के लोग या मेरी तरह के लोग वो कहां जाएंगे? क्या वसीला रोजगार होगा? मैं कहता हूं शर्म करो, तुम्हारे लीडरों के लूटे हुए पैसों ने मेरे मुल्क के बच्चों से जिंदगी छीन ली है। अब क्या चाहते हो? बाकी लोग भी मर जाए? एक दफा जरा जिम्मेदारी से सोचा कीजिए। सिर्फ अपनी सियासत की दुकान चमकाने के लिए इस मुल्क के लोगों की जिंदगियों को दांव पे मत लगाओ। मेरे मौला, एक मेरी दुआ है इस रमजान में कि या अल्लाह इन खबीस सियासतदानों से इस मुल्क को निजात दिला जिनका पेट फटता नहीं है और भरता नहीं है। इस कदर मजबूर है इस वक्त पाकिस्तानी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और क्या इन खबीसों को ये लूटी हुई दौलत कभी इस्तेमाल करने की तौफीक या मोहलत अल्लाह देगा? कभी नहीं। इस मुल्क के पैसे गलते सड़ते रहेंगे स्विस बैंक्स के अंदर या वहां से जहां आगे भेज दिए गए हैं, मगर इन लोगों को नसीब नहीं होगा। खुदा की कसम, इबरत का निशान है वो लोग, और आपको अच्छी तरह पता है मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। और अगर आपको नहीं पता तो खुदा ताला आपको ये तमीज दे ताकि आइंदा आप अपने मुल्क के लिए ऐसे हुक्मरान चुने जो आपके बच्चों का निवाला, उनका मुस्तकबिल, उनका खून ना चूस जाए। ये हमारा कसूर है। अगर हमारे पास वोट का हक है, वो जैसा तैसा भी है, तो उस हक को भी हक समझ के अदा कीजिए, अपने मुस्तकबिल और मुकद्दर के साथ ना खेलिए। मुझे बताएगा मिसेस बुखारी, आपके कोई भाई घर में मौजूद, कोई बड़ा मौजूद, आपके शौहर के कोई भाई मौजूद, जब सारे हालात इस तरह से ख़राब हुए तो किसी से आपने बात की, अपनी दिल की बात कही आपने? जी,
फ़ोन करके अगर रब्ता करना चाहा भी तो नहीं, रब्ता नहीं हो उन्होंने रब्ता नहीं रखा उन्होंने। नबीहा, हर शख्स इस माशरे में मजबूर है, मैं किसी का कसूर नहीं निकालता, उनके अपने मसाइल हैं। और वाकई जब मसाइल होते हैं तो बंदा क्या करे उस वक्त? बहुत मुश्किल है अपना पेट काट के दूसरे का पेट भरना। मगर मुझे ये यकीन है कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग यकीनन मौजूद हैं कि जिनके पास इतना है कि वो दूसरों को दे सकते हैं, और ये उसी के दिए हुए में से उसी के बंदों को देना है। हाँ। आपके पैसे में से नहीं दिया डॉक्टर साहब, उसने, एक और उसी के बंदे को। एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से? अब्दुल सत्तार, आर ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर से बोल रहा हूँ। जी। मैं अपनी बहन को 10,000 रुपए डोनेट करना चाहता हूँ। बहुत बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अकाउंट चल रहा है इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जितने लोग और भी देख रहे हैं, मैं भी उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि इस मुबारक महीने के सदके आप लोग जितनी अगर दिल खोल कर इमदाद करना चाहें इस बहन की, तो आप लाजमी करें, ज़रूर करें, क्योंकि ये महीना हमें दर्स भी यही देता है, सिखाता भी यही है। बेशक, बिल्कुल ये सिखाता है। और ये जो आपके सामने नंबर चल रहा है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, हो सकता है कि अभी नहीं थोड़ी देर बाद आप समझें कि हाँ मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। तो नेकी तो किसी वक्त भी की जा सकती है, और कोई हर्ज नहीं कि अगर यहाँ से हमारी बहन जब जाएं तो एक हौसला और एक नई जिंदगी की नवीद लेके जाएं। मेरे ख्याल में इससे बेहतर सिला रहमी की बुखारी साहब क्या मिसाल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें जो तालीम दी है वो यही है कि फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। हर साहिब हैसियत के माल में अल्लाह ने हमारे इन बहन भाइयों का हक रखा होता है। बेशक, बिल्कुल। और अल्लाह ताला, सच्ची बात है, नबी पाक की मैंने एक हदीस पढ़ी, आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी को माल देता है तो फिर देखता है कि ये मेरे बंदों के साथ क्या मामला करता है। बेशक सही। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये अल्लाह की मखलूक जो है ना, ये अल्लाह का कुनबा है। जो अल्लाह के कुनबे के साथ अच्छा सलूक करता है, अल्लाह उसके मालो दौलत में और इजाफा कर देता है। अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुज़ु फ़िल अर्ज़, ये अल्लाह पाक ने कुरान में उसूल ज़िंदगी बयान किया है कि जो अल्लाह की मखलूक को भला करता है, उसके साथ नफ़ा पहुँचाता है, अल्लाह पाक उसको और इस्तेहकाम अता करता है। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को भला करता है। हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। ये तो हमारे बहन भाई हैं। शाह साहब, हमें इस रमजान यही सीखना है। मैंने कहा था ना कि एक सिफ्त भी अगर आप अपने अंदर पूरा कर ले, जो जिस तरह शाह साहब ने फरमाया कि वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं, तो अपनी ये जिंदगी चूंकि एक बार मिली है, इसमें दूसरों के काम आना सीखें। आपकी कॉल्स शामिल करेंगे। मिसेस बुखारी भी हम, ठीक है, ब्रेक पर जाने से पहले कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैं इनके लिए 20,000 का मैं इस अकाउंट में सुबह जमा करा दूंगा। ठीक है, 20,000 रुपए के लिए मदद की है हमारे भाई ने, बहुत शुक्रिया। बड़ी रकम है, बिल्कुल, कोई भी रकम छोटी नहीं है। आप अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही और आप कुछ करना चाहते हैं, तो जिस के डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, और ये आपकी नेकी अल्लाह के लिए होगी। ब्रेक पर जनाब जाते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे मिसेस बुखारी हमारे साथ हैं, शाह साहब हमारे साथ हैं, प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचेंगे, साथ रहिएगा। ख़वातीन हज़रात, हम अब अपने रोज़े के उस मकाम और उस मंजिल पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं इस इबादत का अजर खुद हूँ। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं जब मेरे मौला ने कह दिया कि रोज़ा बंदे तूने मेरे लिए रखा और इसका अजर मैं खुद हूँ। तमाम खैर का मंबा, तमाम नूर का मंबा, हर अजर का देने वाला अगर इसका अजर खुद देगा तो मेरे ख्याल में इस वक्त इस हालत में इस मंजिल पे की गई कोई भी नेकी किस कदर सरफराज होगी, इसका वाकई अंदाज़ा कोई नहीं। मेरे ख्याल में रोज़ेदार के मुंह से निकली हुई हर दुआ भी कबूल होगी और उसका किया हुआ हर अमल भी कबूल होगा। हमारे पास इस वक्त एक मजबूर और लाचार बहन बैठी हैं मिसेस बुखारी, जिन पे 8 लाख रुपए का कर्जा है। इन्होंने कर्जा लेकर एक रेस्टोरेंट शुरू किया जो कोविड की वजह से कामयाब न हो सका। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इस मुहलिक वबा के बादल छट जाएंगे, वैसे ही इंशाल्लाह इनका कारोबार भी चमक उठेगा। मगर तब तक आप लोगों की मदद की कुछ ज़रूरत है ताकि इनका कर्ज उतारा जा सके और जो इनके कर्ज देने वाले इनको ज़बान और बदतमीज़ी के साथ पेश आते हैं वो उसका सदेबाब हो सके। हमें पहले ही इस ब्रेक से पहले कुछ लोगों ने इनके लिए कुछ रकम प्लेज की है। एंड एवरी पेनी मैटर्स, एक एक पैसा मैटर करता है जब इंसान मजबूर हो। हमारी ये कोशिश होती है कि किसी तरह हम आपके अंदर
सिला रहमी और किसी तरह फलाह का जज्बा उभार सकें, और ये भी एक नेकी है। यकीन कीजिए, हमने शुरू में कहा, बुखारी साहब बैठे हुए हैं, कि सिला रहमी वो नेकी थी जो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने मियाँ में उस वक्त देखी कि जब उनकी बैसत भी नहीं हुई थी, और वो इतनी बड़ी नेकी उसको समझती थी कि उनका ख्याल था कि खुदा कभी भी सिला रहमी करने वाले शख्स के साथ मामला ऐसा नहीं करेगा जो कि उसकी इज्जत को दागदार करे या उसको तकलीफ़ का बायस दे। तो हुजूर वाला, सिला रहमी की मिसाल बनने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जितनी रकम मुमकिन है, जितना आप समझते हैं कि आपको तौफीक है और खुदा आपकी तौफीक बढ़ाए, अपने माल में से इन लाचार लोगों का हिस्सा निकालिए, ताकि ये भी। मैं इनको ये कहना चाहूँगी, ये अभी बात करते हुए इनकी आंखें नम हो गई। मिसेस बुखारी, आपको पता है आप माँ हैं, तो जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों का हौसला होती हैं, माएँ अपनी औलाद की हिम्मत होती हैं। अगर अभी आपको आपकी औलाद इन नम आँखों के साथ देखेगी तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगी? आपने तो आगे बढ़ना है, उनका हौसला बन के आपने उनको राह दिखानी है और आपने उनके लिए कुछ करना है। और मेरा जो अल्लाह है ना, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि मेरे अल्लाह को पसंद है कि मुझे रहमान और रहीम कहा जाए। वो क्योंकि रहमान है, वो रहीम है, और वो अपनी बंदे को, अपनी मखलूक को कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। बिल्कुल जी, कॉलर से बात करते हैं। कॉलर से बात करते हैं जी। कौन सा बात कर रहे हैं जी? अगर आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे तो हमें आपकी आवाज बड़ी बेहतर आएगी। हेलो जी, अच्छा, खैर लाइन ड्रॉप हो गई है, मगर मेरी दरख्वास्त आपसे है कि जब आप कोई भी प्लेज करने के लिए कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। अगर आप अपनी दोबारा आवाज़ सुनना चाहते हैं तो हमारी ये पूरी ट्रांसमिशन यूट्यूब पे नियो टीवी पैगाम रमज़ान के नाम से हर रोज़ अपलोड की जा सकती है। आप अपनी आवाज़ भी सुन सकते हैं और यकीनन अपना किया हुआ वादा भी आपको दोबारा याद आएगा। ख़वातीन हुज़रात, मैं दोबारा एक दफ़ा, हम चूँकि अपने अख्ताम की तरफ पहुँच रहे हैं, बुखारी साहब तशरीफ़ रखते हैं, मैं बुखारी साहब से एक दफ़ा फिर से दरख्वास्त करूँगा, सर एक दुनिया में चीज़ कही जाती है कि वो मेरे साथ अच्छा है तो मैं उसके साथ अच्छा हूँ, क्या सिला रहमी सिर्फ इतनी बात है? नहीं, हदीस पाक में नबी पाक ने बड़ा वाज़ेह फरमाया, लैसल वासिलु बिल मुकाफ़ी, अदले का बदला करने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं होता। वाह, वो तो अदले का बदला कर रहा है। असल सिला रहमी वो करता है कि जिसके रिश्तेदार उसके साथ बुरा सलूक करें और फिर भी अच्छा सलूक करे। एक सहाबी ने आके पूछा था इसी तरह कि मेरे रिश्तेदार इस तरह के हैं, मैं सिला रहमी करता हूँ, बुरा सलूक करते हैं। फरमाया, वला यज़ालु माका मिनल्लाहि ज़हीरु मा दुमता अला ज़ालिका, अगर तू अपने इस रवैये पे कायम रहा कि तोड़ने वालों के साथ जुड़ता रहा तो मैं अल्लाह का तुम्हें गारंटी देता हूँ, आसमान से फरिश्ते नाज़िल होकर तेरी मदद किया करेंगे। मैं अपनी बुखारी बात आपने की है कि सरकार ने कहा कि अदले का बदला देने वाला अपने आपको सिला रहमी का खूगर ना समझे। बिल्कुल, सिला रहमी वो है कि कोई आपसे तोड़े मगर आप फिर भी आप जोड़ कर बदला इंसान दे भी नहीं सकता है। आप किसी के साथ जब नेकी करेंगे तो आपको नहीं पता कि अल्लाह ये कितने रास्ते खोलेगा। मैं अपने बहन के लिए, हमारे पास, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि हमारा अकाउंट टाइटल वहाँ पे चल रहा है मिसेस बुखारी के लिए, मगर एक बच्चा भी हमारे साथ यहाँ शामिल हो गया, इसका नाम है अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, माइक करीब करके बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 8 साल है। अच्छा, आज इस प्रोग्राम में क्यों आए हैं? क्या आप रोजादार हैं? जी। पक्की बात है? जी। सहरी की थी ना? जी। वाह, बहुत उम्दा बात है। आखिर में मैं चाहूंगा कि हम आसिफ चिश्ती साहब की तरफ बढ़ें। आसिफ, मुझे बताइए, जो कलाम इस वक्त आप शामिल करेंगे और ये बड़ा अहम वक्त है रोज़े का, उसकी क्या नौइयत, क्या है, मजमून क्या है उस नात का या उस कलाम का? देखें जी, सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक में, ये मुबारक महीने में हमारा ईमान है कि इस महीने में हम कुछ भी अगर मांगते हैं उस रब ताला से तो इल्तिजा है, दुआ है, मग़फ़िरत है, तो वो रब ताला की रहमतें जो हैं उसके दरवाज़े इस महीने में खुले हैं। तो मेरा पहले सफ़र मदीना के हवाले से गुफ्तगू थी मेरी, मैं चाह रहा था कि मैं सफ़र मदीना पेश करूं, पर जैसा कि मेरी वालदा यहाँ माँ के बराबर मेरी बहन, मेरी वालदा यहाँ मौजूद हैं, जो बड़े हैं, वालदैन की हैसियत रखते हैं, तो और जो कैफियत है, जो माहौल बन गया है यहाँ पर स्टूडियो में, तो मैं एक दुआया कलाम है जिसके चंद अशार पेश करना चाहूँ। बिल्कुल सही बात है, मगर एक वादा आपसे लूँगा जी, सफ़र मदीना की कैफियत कल के प्रोग्राम में शामिल होंगी जी इंशाल्लाह। बेशक। करम